बनी और बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया फिल्में, एक्सपेक्ट द कमर्शियल एक्सपेक्ट एज वेल एज कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी. No, you'll be surprised that when I decided that I am going to do Nat Samrat, people started avoiding me like the plague because see they had seen the play. At the end of the day, when you adapt theatre, they didn't know what was मेरे स्क्रिप्ट में क्या था. So they were just waiting कि ये बनने दे फिर देखेंगे. थिएटर तो बहुत it has been seen by so many people, तो सिनेमा कौन देखने आएगा. But then I knew when the script was made somewhere, I knew कि I have a Vinod man. The only problem was I had to convince someone who was going to put in money, and I'm very fortunate कि मुझे विश्वास जोशी जैसे प्रोड्यूसर मिले. Because it was not an easy film to make. I needed a bird theatre. So मैंने लिखने में तो बहुत easy लगता है. I still dread the fact मैंने लिखा एक bird theatre. लाएगा कहाँ से bird theatre? So we had to make a theatre and burn it, and then shoot there. एक bridge के नीचे रहता है. So today shooting under a bridge with Nana Patekar is next to impossible. And there were day scenes, night scenes, सब था. So erect that bridge. So nowhere did the producer falter. No, किसी बताया नहीं उसने मेरे को कि यार इतना खर्चा क्या करेंगे. And for a Marathi film, the budget was nearly 2.5 times the normal Marathi film budget. But then I think once we saw the rough cut, हम जानते थे कि we have got to win the Marathi. Z का आना बहुत बड़ा contribution था. They really took it to the masses. They know how to market film. But then at the end of the day, only marketing doesn't help. So, and there was a connect. क्या होता है लोगों ने बताया कि नट सम्राट ओल्ड है कौन देखेगा यूथ. But I think there was a lot of youth who saw the film. What happens if you today underestimate the youth? Today the youth is exposed to so much कि you don't need to tell them. You don't कि ये जो कोई सोचता ना कि I'm making a film ये youth के लिए बना रहा था. They're the biggest morons. Yeah. Because the youth knows what is right for them, what is wrong for them. Don't try to categorize. So somewhere I think everybody contributed. Everybody, actors, my set designer, my music composer, my cameraman, everybody was there. They were spot on. So that is the reason हम लोग ने सोचा था. मैंने कहा था 45 days लगेंगे शूट के लिए. मैंने शेड्यूल ही बनाया था 45 days का. नाना बोला नहीं 60 दिन के नीचे एक दिन लगेगा. ठीक है देखेंगे. And before we knew it, we had finished the film in 36 days. So also, everybody was charged. And then, I don't know, whether I thought there will be interaction with the audience. What happens is sometimes, we had everything bound. Script. एक बहुत बड़ा advantage है. It's a huge advantage. I mean, there are some changes you do in a script, but having a bound script is the best thing to do. बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमने सीन लिखे रहते हैं, will improvise नहीं होता. Improvise भी होता है कभी-कभी. But when you say कि everything, you have basic 90% of the script should be there, and वो बहुत contribute किया. नाना सर, would you like to add something? नहीं, मेरा काम तो हो गया था ना. फिर ये प्रोड्यूसर का काम था पैसे गिनना. मेरा क्या था? मेरे पैसे तो दिए थे उसने. और पैसे से ज्यादा एक इतना कुछ करने का मौका मिला. सो मुझे सभी जो रेम्यूनरेशन था वो पहले ही मिल गया था. तो मेरे लिए तो फिल्म पहले ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी. क्योंकि इमोशनली मुझे जितना करना था एज एन एक्टर वो तो मुझे मिल गया था. सो आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द बिजनेस. सर साथ ही जानना चाहेंगे नाना सर कितना चेंजेस देखते हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड और मराठी दोनों सिनेमा से जुड़े हैं, तो मराठी सिनेमा में पहले से लेके अब तक कितना चेंज फील करें? क्या लग रहा है कि एक वही प्लेटफॉर्म मराठी सिनेमा? want to answer. I was just shooting in Calcutta for a Bengali film. उधर बैठ के मैं वही बात कर रहा था. The only two progressive cinema in the country was Marathi cinema and Bengali cinema. शुरुआत जब हुई थी तब प्रोग्रेसिव सिनेमा विचारधारा हमने माणूस बनाई थी 43. So we were always a little ahead, but then slowly क्या हुआ? Because महाराष्ट्र में काफी लोग हैं, काफी लोग थे, 100% लोगों को हिंदी आती है. So the biggest competition became the Hindi cinema, and it was a David versus Goliath because उनका बजट ज्यादा था. What we did is we tried to play into them, we tried to fight them. We should have not. We should have kept पहले से कि हमारा स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे. Which बीच में हम लोग करके हार के गिर के हम लोग वापस आके today we realize
that as long as I have a script, we can fight anybody. मैं कैलकाटा में गया, हाफ द कैलकाटा लोग बोलते आजकल फिल्में चलती नहीं. I said, तुम लोग ने वो उधर सत्यजीत रे मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव. वो ऋत्विक घटक मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव बिकॉज तुम लोग 80% of the film are remakes of the South. I said, when you have a rich culture, literature, why are you depending on something which is run of viewers? मराठी ने अभी ये रियलाइज किया, ऐसे नहीं कि मराठी में बकवास फिल्में नहीं बनती, बट जो फिल्में चलती हैं उनको बेस बहुत स्ट्रांग है स्टोरी. सो टुडे वी हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी. और एज आई सेड ना, आई ऑलवेज से दैट द मराठी फिल्म इंडस्ट्री और कोई भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री विल बी द बिगेस्ट व्हेन यू कन्विंस द पीपल दैट सिनेमा हैज नो लैंग्वेज. आज मैं फ्रेंच सिनेमा देखता हूँ, मैं आज एक बोस्नियन सिनेमा देखता हूँ, इट डजंट, आई एक्चुअली एंजॉय. मैं माजिद माजिदी की फिल्में देखता हूँ, आई एंजॉय बिकॉज सिनेमा एक्चुअली शुड हैव नो लैंग्वेज. Today with Natasamrat, I have seen about 30% of non-Marathis seeing the film. The moment that increases to about 50, we have a bigger business. So, आज जो कैलकाटा के इंडस्ट्री हो रही है, I just told them the same thing. I said, depend on your this thing. I said, तुम्हारे प्लेट में ऐसे बहुत अच्छा खाना पड़ेगा, तुम लोग क्यों जाके बाहर वो रस्ते का वड़ा पाव है? Why is the attraction? So, Marathi industry has realized it now. And we are back to quality cinema. So, इसके बाद Marathi cinema is going to progress आगे. We are not going to depend. See, why Marathi cinema? Today you see Hindi cinema also. देर आए दुरुस्त है. Today they are realizing the value of a story and a subject. एक एक्टर फिल्म में चला सकता है, एक फिल्म चलाएगा, दो फिल्म चलाएगा. But at the end of the day, if you take examples, I don't want to name them. If you see the cinema which has done well in the last 1.5 years, you'll realize that there is an audience for sensible cinema. And there is huge audience. पहले क्या था? Multiplexes नहीं थी. So that audience was not coming to theaters. जो intelligent audience था. So ये mass का audience जो आ रहा था, उनको वही अच्छा लग रहा था. Today that intelligent audience is ready to come to the theater, but they're not ready to see the trash throwing at them. So give them a Talwar today, give them a Nirja today, give them a Kapoor and Sons today, so they are eager to lap onto it. So today, Hindi cinema, Marathi cinema, Bengali cinema is going through a transition for the better. And ये जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, ये बना दे क्या, प्रोजेक्ट बना दे, ये 2 गाने हो गए, 1-2 कॉमेडी सीन्स हो गए. I can name them. There are some I have worked also. I've done some good cinema also, but I've done some atrocious because they provide my kitchen ka needs, you know. Like I've done a film called Himmatwala, and nobody can dare to say anything because I have उनको ये था, डिमांड ऐसे सप्लाई रहता है, उनको हैमिंग चाहिए थी. I said, what age and time are you working on? ये क्या? But ठीक है, I was being paid for it. But today that's not going to work. The audience is going to reject it outright. So जो प्रोजेक्ट बनने का ना, वो जो राइटर अभी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, आई डोंट नो नेम है, तो उसकी फिल्में चलती है, बहुत चलती है, फिर वो थोड़ा इफेक्ट होने लगा कि नहीं ये थोड़ी फिल्में कम चली है, थोड़ी फिल्म कम चली, रिस्पॉन्स नहीं है, ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा नहीं है. सो समवन ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसे वो फॉर्मूला है, वो वही कर रहे हैं. स्टोरी कुछ भी हो, डायलॉग वही बोल रहा है एक्टर. सब्जेक्ट लव स्टोरी है, एक एक्शन फिल्म है, डायलॉग तो वही बोल रहा है, बिकॉज 2 फ्रंट बेंचर्स के लिए डायलॉग लिख रहे हैं. सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू नीड गुड राइटर. नोबडी हैज लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग अपने पास. अभी रियलाइज होने लगा. सो वी आर इन अ गुड जोन नाउ, वी आर एंटरिंग अ गुड जोन. नाना सर, आपके कहना चाहिए कितने चेंजेस देखते हैं पहले से? यार तुमने वेलकम देखी है? तो मैं वो भी करता हूँ, नट सम्राट भी करता हूँ. एक एक्टर होने के नाते तुम्हारे हिस्से में क्या आता और तुम क्या करना पसंद करोगे? नट सम्राट उतने तो पैसे देगी नहीं जितने वेलकम वाले देंगे. तो सिर्फ पैसे के लिए मैंने वेलकम नहीं की. वेलकम उस जॉनर में मैं काम कर सकता हूं क्या, मुझे देखना था. वो भी करना है, ये भी करना है. बिल्कुल दिमाग घर में नहीं, कहीं फेंक ही दो बंडल करके किसी समुद्र में, जब तक वो फिल्म कर रहे हो.
और वहां जाके करो तो वो फिर सक्सेस, और सक्सेसफुल होने के बाद मैं ऐसी फिल्म रिलीज होती है तो मैं जाके गांव खेड़े में छिप जाता हूं ताकि कोई मारे ना कि भाई हम तुम्हारा नाम सुन के हम ये फिल्म देखने गए और इतना बकवास फिल्म हमने देखी नहीं, 3 घंटे पैसे सब कुछ गया हमारा। तो एक एक्टर होने के नाते एक्सपेरिमेंट करके तुम 1 बार 2 बार कर सकते हो, लेकिन लगातार नहीं। क्योंकि मैं ये जैसे कहता है कि किचन मेरा चलने के लिए मुझे करना पड़ता है, मेरा किचन बहुत छोटा है तो मैं एक दिन भूखा भी रह सकता हूं। इसका किचन इसके लिए नहीं बड़ा, इसका भी किचन छोटा है, लेकिन इसको बाकी के लोगों को खिलाने की बहुत इसको मतलब इसके घर में कम से कम दिन में 20-25 लोग खाना खाते हैं मिनिमम, क्योंकि वो आ जाओ मतलब ओपन हाउस है उसका, तो उनके लिए वो ऐसी बकवास फिल्में करता है। सच्ची मैं सब इसके पास जाओ तो बेहतरीन का बेहतरीन खाना, बेहतरीन शराब, जागते रहो कितने बजे तक, ये इसको तो नींद आती नहीं, निशाचर आदमी है। और तो मेरा वैसा है ना, मैं उस वक्त सोना है क्योंकि मैं एक्टर हूं, मुझे एक्टर होने के नाते मुझे ये करना है। वो ज्यादा डायरेक्टर है एक्टर से ज्यादा। मैंने उसको 100 बार कहा कि तू इतना बेहतरीन एक्टर है, अपने आप को तूने संभाला नहीं। तू कहता है नहीं किचन चलाने के लिए मैं कभी कभार कुछ कर लेता हूं, लेकिन गलत है। मैंने कहा तेरे अंदर का जो एक्टर है उस तेरा जो डायरेक्टर है तेरे एक्टर पे हावी हो गया। तो ये इसकी मैं मतलब हमेशा कहूंगा, मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो मैं इसके एक्टर के नाते वो कितना बेहतरीन काम कर सकता है मैं दिखाऊंगा, बेहतरीन काम, क्योंकि उसके अंदर है वो सब, लेकिन वो करने का मौका ही नहीं मिला। हमिंग करने के लिए पैसे मिलते हैं तो चलो हमिंग करते हैं यार, क्या है। लेकिन मराठी फिल्म का जो, और उस वक्त साइमल्टेनियसली मानुष जब की विशांताराम जी ने, तभी उसी वक्त आदमी हिंदी में की, उस वक्त पड़ोसी की, तो 2 वर्जन में वो करते थे उस वक्त के डायरेक्टर ही कमाल थे। हमारा पार्टीशन होने के बाद भी हमारी फिल्में देखो, पार्टीशन के बाद की, अब 5 साल के बाद की देखो, 10 साल के बाद की देखो, जैसे जैसे हम दूसरी एक पीढ़ी आ गई जिन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, जो हमारी पीढ़ी भी, हम भी क्या 50 के है, 51 के बॉर्न, लेकिन फिर भी हम पर वो ये था, संस्कार थे, हमारे माँ बाप जो कहते थे। उसके बाद के तुमको तो आजादी में मिली है ना, सब आजादी पॉकेट में मिली है, तुमको तो उसको देना तो कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारे शायद पिताजी ने भी नहीं दिया होगा, तो तुमको उसकी कीमत नहीं, वैल्यू नहीं। तुमको लगता है कि नहीं हम फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं। आजादी का मतलब कुछ है, आजादी को तुमने कुछ दिया होता ना, तब पता चलता फ्रीडम का मतलब क्या है, बोलने का फ्रीडम। बोलने का फ्रीडम क्या होता है भाई? बाप मां तुम्हारे लिए सुबह जाके रात तक, वो बाप जो मरता है, देखा तुमने मरते हुए अपने बाप को, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये गैजेट चाहिए, वो गैजेट चाहिए, मांगने में कितनी आसानी हो जाती है, कितने हम आसानी से, बहुत आसानी से सब मांगते हैं, सब करते हैं। देने का वक्त आता है तो हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो आज जो है, आज जो हमारे यूथ का जो प्रॉब्लम जो बढ़ने लगा है, घुटन बढ़ने लगी है। घुटन क्या है? कुछ अब जाके तुम्हें सवाल कुछ तुम अपने आप को पूछने लगी हो, ये क्यों है, ये क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों होता है। मुझे पकड़ के फांसी देने से तुमको तुम्हारा हल होगा प्रॉब्लम? नहीं होगा। मैं ये क्यों करता हूं, ये जब सोचोगी तो फांसी देने की नौबत ही नहीं आएगी। एक को फांसी दोगी फिर ये है, इसको फांसी दोगी फिर वो है। फांसी देने से कुछ नहीं हो, जो जड़ है उसे उखाड़ के फेंक दो। और वो आज की जनरेशन कर रही है, वो उस जड़ से जाके भिड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे फिल्मों में आएगा। वही है कि तुम चौराहे पे चिल्लाओगे तो तुमको पकड़ के डंडे मार के जेल में डालेंगे हम, लेकिन फिल्म के जरिए कहोगे तो हम तुमको अवार्ड देंगे। तो हम फिल्म के जरिए कहने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं खड़ा है? थैंक यू बेटे, थैंक यू। मुझे लगा क्वेश्चन ही नहीं है।
Hmm.